last class for the shape design, the beam strength should be equal to velocity multiplied by yes, P effective. P effective is P ES. P effective is PP into CS divided by CV. Okay. CV is the velocity factor. So CV is calculated by 3. CV is calculated by 3/3 plus V when the velocity is equal to 5 meters per second or less than equal to 5 meters per second. So these formulas are given in data book. As the velocity increases, the formulas for the velocity factor are changes. So sometimes it is 3/3 plus V, sometimes it is 6/6 plus V, or sometimes it is 10/10 plus V. So don't require to remember those formulas, they are given in the data book. So as per the gear velocity, we can use according to that. General, if the velocity is not mentioned in the question, then we will assume the velocity as 5 meters per second. Right? So V equal to generally क्या रहता है? Pi dn by 60. So we take the diameter in millimeter. So this formula gives unit millimeters per second. But in this formula, the V is in meters per second. Very careful, है ना? जब भी आप यूज करें, तो वेलोसिटी फैक्टर में जो V है, वो मीटर्स पर सेकंड में आपको पुट करना है ना? तो जस्ट डिवाइड दैट वेलोसिटी बाय 1000, है ना? If you are using diameter in millimeter, then it is pi d by 60,000 meters per second, है ना? इसका एक दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, 60,000 meters per second is in millimeter. If we are using D is in millimeter, then pi d by 60 will give millimeters per second, pi d by 60,000 will give meters per second, and this value has to be used here, meters per second. If the velocity is more than 5, then you have to go in the chapter of spur gear, and there is a separate heading or separate table for the velocity factor. In that table, you see if this is the velocity range, then what is the formula for velocity factor. Accordingly, you use it. So this is the beam strength. ये हो गया. PT तो आपको सब पता ही है, MT हम पहले बता चुके हैं, है ना? PT is twice MT by D. ठीक है? Diameter किसका लेंगे आप? Which is weaker. Which is weaker. Suppose this is a pinion. This is a pinion. Which pinion is weaker? Smaller होगा तो same material. हाँ? Same material जो smaller होगा material. In one application, this is the pinion. In another application, this is the pinion. Which is weaker? Small. If there is a matching, this pinion and this here. This is one case, है ना? Let the number of the teeth are 18, number of the teeth are let 40. This is one combination. Another combination, let teeth are 22 over here. Okay, and this is 38 over here. This ठीक है. तो मेरा ये कहना है कि 18-40 का एक कॉम्बिनेशन है, 20-38 का एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है. If they both are made of same material, then pinion is weaker. Yes sir. ठीक है. If they are both made of same material, then pinion is again weaker. Out of these two pinions, which is weaker?
इसमें let these two gears are made of cast iron, ठीक है, let FG 350, ठीक है, FG 350, these gears are made of let FG 400, ठीक है, in this combination pinion is weaker, they both are made of FG 450, they both are made of FG 350, so head pinion is weaker. Out of these two, which is weaker? First one. First one is weaker. Suppose it is 450, it is 350, then ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा. You have to check the product, है ना, because the strength is different and teeth factor is also different. Here the teeth factor is according to 18. Here the teeth factor is according to 22. So teeth, the Y will be more here as compared to here. Y will be more, and strength is less as compared to here. So we will check the product. The product is less, that will be the B. ठीक है, ऐसे चेक करें. अब मान लीजिए ये 20 to 38 का है, एक और कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो भी 20 to 38 का है, ठीक है. इसके टीथ स्मॉल 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 है, इसके टीथ बड़े बड़े हैं, which is weaker. छोटा टीथ होने से टीथ की संख्या बढ़ जाएगी, हैं? टीथ की संख्या बढ़ जाएगी तो टूथ फैक्टर बढ़ जाएगा. अगेन यू हैव टू चेक द प्रोडक्ट, ठीक है. इफ द टीथ आर बिगर, इट मींस मॉड्यूल इज बिगर, मॉड्यूल इज हाई. So in the beam strength, module is again a parameter, ठीक है. तो for the same diameter, है ना, number of the teeth will change, so Y will change. If teeth same for the same diameter, if the teeth are small, then number of the teeth are more, ठीक है. तो Y वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा, सिग्मा B मटेरियल चेंज है तो वो भी चेक करना पड़ेगा, मॉड्यूल भी चेक करना पड़ेगा. फिर मॉड्यूल के साथ में B equal to 10m होता है फेस विड्थ, तो बीम स्ट्रेंथ मॉड्यूल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है, मॉड्यूल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है. तो मान लीजिए किसी कॉम्बिनेशन में मॉड्यूल 1.5 टाइम्स है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है. मान लीजिए मॉड्यूल 1.5 टाइम्स है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 2.25 टाइम्स. m into 10m, so m into m is m square, है ना. so m की जगह 1.5m हो जाएगा, तो 1.5 स्क्वायर इज, तो ये मतलब वैसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि एवरीथिंग इज सिमिलर, ओनली द मॉड्यूल इज 1.5 टाइम्स, देन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कॉम्बिनेशन विल बी 2.25 टाइम्स, ठीक है. तो कई सारे पैरामीटर्स पे स्ट्रेंथ, तो ये सब हमने पढ़ लिया है. हमने एक न्यूमेरिकल इसको किया है कि नहीं, अभी नहीं किया है, अभी नहीं किया. हेलिकल गियर और हाँ देखो, हेलिकल गियर कॉम्बिनेशन में पिनियन भी हेलिकल होगा और गियर भी हेलिकल होगा, ठीक है. जैसे इस पर गियर में दोनों पर टीथ क्या है, स्ट्रेट है ना, पिनियन पे भी स्ट्रेट है, गियर पे भी स्ट्रेट है, राइट. लेकिन हेलिकल गियर के केस में यदि पिनियन पे लेफ्ट हैंड टीथ है, लेफ्ट हैंड, तो गियर पे राइट हैंड होगी, ठीक है. पिनियन पर यदि लेफ्ट हैंड है तो उस पर राइट हैंड, तो फिर उनकी कॉम्बिनेशन बनती है. इस पर गियर में कांटेक्ट जो होता है वो लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है. पिनियन और गियर टीथ में देयर इज लाइन कांटेक्ट.
और उसमें हेलिकल गियर में देने के पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है। सो एट द हायर वेलोसिटीज द नॉइस इज लेस इन द हेलिकल गियर, क्योंकि लाइन कांटेक्ट में ज्यादा नॉइस आएगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ज्यादा तो हायर स्पीड पे इस पर गियर्स बहुत नॉइस करने लग जाते हैं, ठीक है। देन वी प्रेफर हेलिकल गियर्स इन दैट केस। तो उसकी डिजाइन बिल्कुल अलग है थोड़ी, उसमें एक और एंगल आ जाता है, ये टीथ का जो जिस जिस डायरेक्शन में ये एंगल है, जिस डायरेक्शन से हेलिकल एंगल, तो उसका भी इफेक्ट आता है डिजाइन में, है ना। इन स्पर गियर दैट एंगल इज 0 डिग्री, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अभी इस पर के बाद में उसको देखेंगे। व्हाट इज आइडलर गियर? आइडलर, आप बताओ कोई, आइडलर गियर क्या होता है? जैसे सपोज दिस इज वन गियर, ठीक है, आई हैव टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यहां एक शाफ्ट है, यहां एक शाफ्ट है। अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जब ज्यादा होती है तब हम बेल्ट पुली अरेंजमेंट यूज करते हैं। गियर्स कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है ना, गियर्स कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर डिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे ये गियर और ये गियर, अब बीच में ये स्पेस, थोड़ा सा स्पेस बच रहा है इसी रीजन से, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक बड़ा गियर बना दूं, बड़ा गियर बनाऊंगा, नया गियर बनाऊंगा, नई कॉस्ट आएगी, ठीक है ना, बड़े गियर की कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस गैप को फिल करने के लिए बीच में एक और गियर लगा देते हैं, और उसका कोई पैसा यूज नहीं होता, वो केवल कनेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, दिस गियर एंड दिस गियर आर नॉट कनेक्टेड, बट आई हैव टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम हियर, सो आई विल यूज ए आइडलर गियर इन बिटवीन। इनके बीच में मैंने क्या यूज कर लिया है, आइडलर। तो इस आइडलर गियर की वजह से क्या हुआ, टॉर्क जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो ये जो गियर है, ये आइडलर गियर क्यों कहला रहा है, क्योंकि बताओ, देखो ये भी किसी शाफ्ट पर है, ये भी किसी शाफ्ट पर है, ये भी किसी शाफ्ट पर है, ठीक है। ये काउंटर से कनेक्टेड है, तो ये टॉर्क ट्रांसमिट करता है। यदि ये गियर इससे डायरेक्ट जुड़ा होता तब ये यहां से टॉर्क यहां ट्रांसमिट हो जाता है। अब बीच में गैप है, टॉर्क ट्रांसमिट नहीं होता, तो इस गियर का काम क्या है, टू फिल द गैप, ठीक है, टू फिल द गैप। तो आइडलर गियर के शाफ्ट पे टॉर्क की वैल्यू 0 रहती है। ये जो आइडलर गियर का शाफ्ट है ये फ्री रहता है, हाँ ये फ्री रहता है। तो टॉर्क फर्स्ट गियर से आइडलर पे आता है और आइडलर से थर्ड गियर में चला जाता है विदाउट द यूज ऑफ शाफ्ट, उसका शाफ्ट भी रोटेट करता है, आइडलर गियर का केवल गियर रोटेट करता है। जनरली क्या रहता है, गियर शाफ्ट में एक की हेल्प से फिक्स रहता है, ठीक है, हब में जैसे पुली शाफ्ट के साथ फिक्स रहती है, ऐसे गियर शाफ्ट के साथ फिक्स रहता है। तो आइडलर गियर को हम फ्री छोड़ देते हैं, तो उसका सिर्फ पर्पस होता है टू फिल द गैप, ठीक है। और डिजाइन इंजीनियर्स उसको कहीं कहीं ऐसी जगहों पर यूज करते हैं जहां पर बड़ा गियर बनाना पॉसिबल नहीं है ना। मान लीजिए बड़ा गियर बनाए तो कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन बड़ा गियर बनाने से पता लगा कि यहाँ पर कोई और इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो बड़ा गियर बना के भी आपका काम सॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा गियर बनाने से फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा किसी चीज में। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे चीजों में हम आइडलर गियर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइडलर गियर का एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको, उसको आप कर, हाँ वो तो डिपेंड करता है कि हमें किस रेशो की रिक्वायरमेंट है। तो सर हमने तो जो टॉर्क पहले जो गियर है जो रोटेट हो रहा है जिसमें ट्रांसफर करना है हमें तो नहीं करना है। हाँ तो देखो आपके लिए वही टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप कौन गियर नहीं बनाएंगे। तो आइडलर का मतलब क्या, मतलब आइडलर कुछ परसेंट लॉस देता होगा नहीं। देखो मान लीजिए पहले गियर पे 18 थे, दूसरे गियर पे कितने थे, मान लो 40 थे, तो वेलोसिटी रेशियो क्या रहा आपका
40/40। हाँ, अब बीच में मान लीजिए आपने आइडल लगा दिया, तो आइडल के लगाने से वेलोसिटी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैंसिल हो जाता है। v2/t1 * c3/t2, v2 जितना भी बड़ा बना लो आइडल को, कितना भी छोटा बना लो, वेलोसिटी तो चेंज आएगी, वो तो केवल स्पेस को फिल करने के लिए होगा, उसके टी का कोई कांसेप्ट ही नहीं है डायरेक्शन, केवल ड्राइवर और ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, राइट। The pitch circle of a train of spur gears, the pitch circle of a train of spur gears are shown in figure. Gear A receives, थोड़ा फास्ट लिखिए ना, Gear A receives 3.5 kilowatt power at 700 RPM through its shaft and rotates in clockwise direction. Rotates in clockwise direction. आगे लिखें, Gear B is the idler gear. Gear B is the idler gear, while Gear C is the driven gear. While Gear C is the driven gear. Is the driven gear. The number of the teeth on gear A, B, C, comma लगा के gear A, B, C are 30, 60, 40. 30, 60 and 40 respectively. While the module is 5 mm, calculate the torque on each gear shaft. The torque on each gear shaft and component of the gear tooth forces. तो देखिए, दिस इज द डायग्राम गिवन, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। इधर देखो, शाफ्ट ए गियर लगा हुआ है, गियर बी इज मैचिंग विद गियर बी, गियर बी इज मैचिंग विद सी। क्वेश्चन में लिखा है कि बी कैसा गियर है, आइडलर गियर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस ये गियर कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, ये निकालना है एमटी ए और एमटी बी निकालना है और एमटी सी निकालना है, ठीक है, एमटी सी निकालना। इसका किलोवाट पावर दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है, तो इसका टॉर्क बड़े आराम से निकल गया है ना, तो इसका टॉर्क निकल गया जो भी आया। अब इसका टॉर्क कितना होगा, इसका टॉर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका टॉर्क तो 0 होगा, बी का 0 होगा, बिकॉज इट इज आइडलर गियर, ये तो फ्री है ना, जितना ले रहा है उतना दूसरे को ट्रांसफर कर दे रहा है, इसके पास अपना कुछ नहीं है, ए से लिया अपना कुछ नहीं, फ्री है ना, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। जनरली लोग क्या गलती करते हैं एग्जाम में, वो इसकी हेल्प से, जैसे फ्री ना होता, आइडलर ना होता, तो उसके हिसाब से वैल्यू निकाल देते हैं, तो उसके हिसाब से तो वैल्यू अलग आएगी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आइडलर होने से टॉर्क 0 है, ठीक है, और इसका टॉर्क निकल ही जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में टेंजेंशियल फोर्स होगा, यस और नो,
होगा। पीटीपीआर लैब में भी तो फ्री बॉडी बनाया था, तो इन दोनों के बीच भी फ्री बॉडी डायग्राम होगा पक्का। इन दोनों के बीच भी पीटी होगा। ये पीटी बराबर होंगे अलग अलग? क्यों बराबर होंगे? वो बराबर क्यों होंगे? ये जो मॉड्यूल 5 है ये किसका मॉड्यूल है, इसका या इसका? मॉड्यूल तो सबका सेम ही होगा क्योंकि मैसिंग है, तो मॉड्यूल इज कॉमन। ठीक है, टॉर्क इज 0 एट मिडिल, टॉर्क ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम से पीटीपीआर निकालो, इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम से पीटीपीआर निकालो। ठीक है, फिर इसके साथ पे कुछ रिएक्शन आएगी तो वो रिएक्शन निकालो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नहीं तो नहीं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो करना क्या है, तीनों का टॉर्क निकालना है और हाँ पीटीपीआर निकालना है, और रिएक्शन केवल आइडलर वाले पे निकालनी है, रिएक्शन केवल आइडलर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। कितने पार्टिसिपेंट है मेरे साथ? 59। अपने रोल नंबर पीटी की डायरेक्शन, पीआर की डायरेक्शन, पीआर की डायरेक्शन, पीटी की डायरेक्शन, 1 2 3 4 इन 4 इक्विवेलेंट फोर्स निकालना तो डायरेक्शन है। आगे इन फोर्सों को बैलेंस कौन कर रहा है? वो शाफ्ट कर रहा है ना। हाँ चलिए कोशिश करिएगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। रोल नंबर्स दे दीजिए मुझे।